Assalamu alaikum. Today again we are here to discuss third law of independent assortment. So first we will see what this law states. This law states that genes for one trait are not inherited together with another traits. So from the statement you can notice that more than one traits are present to apply in experiment. If more than one trait or more than one characters are included in the experiment, then this type of hybrid will be called dihybrid. While in our previous law of segregation, we have only monohybrid, pure hybrid with single characteristics or single traits. So if dihybrid, such type of cross involves two characters, two traits, but controlled by different genes with its own alleles. With different genes, it means more than one characters are present, it means more than one genes are present, but the genes will be handled with their own alleles. You can notice the difference of genes and alleles. Same chromosomes पे अगर वो हैं, then these are genes. अगर वो alternate part पे हैं, homologous chromosome हैं and genes are on the other chromosome, तो वो दोनों आपस में क्या होंगी? Alleles. It's not the matter whether these concern to the same homozygous केस और heterozygous केस. दोनों केसेस में हम कहेंगे alleles, homozygous alleles and heterozygous alleles if these are located on the second part of homologous chromosome, second chromosome of homologous chromosome. Understood now? Now take example. The examples we have two characters. We will use two characters and two shapes. Two characters in which shapes and colors will be considered. Shape is considered one character and color of the seed are considered second character. Shape में हमारे पास we used round and wrinkled. Round will be represented by capital R. You know alleles have two members, so double capital R. And wrinkled, for the wrinkled indication we will use the small alphabet, small r. It means double small r. For the color recognition we will use yellow color and green color. Yellow color, for the yellow color recognition we used capital Y, the same double capital Y, and for the green small y, same double small y, because we are going to indicate the alleles, not only genes. Now we will point it out also dominant cases and recessive cases. Here dominant cases we have, look at this, R, capital R for roundness and small r for wrinkledness, Y, capital Y for yellow color and small y for green color. Such type of gametes we are going to be used, such type of characteristics we will going to be used. ठीक है, अब यहाँ पे round and yellow, because more than one traits we will consider here in the third law of independent assortment. इसमें हमने दो characters को लेना है और देखना है कि whenever they will appear in the second generation, both of these characters remain same with the same combination or they will चेंज देयर कम्बिनेशन. पॉइंट आउट हमने ये चीज़ करनी है कि जब ये इनहेरिटेड होंगे डबल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, तो क्या ये बाउंड रहते हैं कि राउंड ऑलवेज रिमेन विद द येलो कलर एंड रिंकल आर ऑलवेज विद द ग्रीन कलर, और दे हैव चॉइस, ओपन चॉइस है उनके पास कि वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, ज़रूरी नहीं है कि राउंड हमेशा येलो के साथ रहे, ज़रूरी नहीं है कि रिंकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा ग्रीन के साथ रहे. कलर एंड शेप में जो यूनिकनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो
बाउंड नहीं है कि वो अपनी कम्बिनेशन सेम के, दे हैव द ओपन चॉइस, वो किसी के साथ भी किसी करे, वन एलील हैव अ ओपन चॉइस टू मीट कम्बिनेशन विद एन अदर ट्रेड्स, किसी भी ट्रेड के साथ जो हमने मेंशन किए हैं उन दोनों में से किसी के ट्रेड के साथ कम्बिनेशन बना सकती है। पॉइंट आउट हमने ये करना है। अब हमारे पास पेरेंटल जनरेशन आ गई, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब हम इसमें इन बोथ केसेस, इन केस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इन केस ऑफ हेयर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हम हमेशा क्या करेंगे, वी विल यूज़ इन द फर्स्ट स्टेप हमारे पास वही होगी जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ही को हमने कंसीडर करना है। तो फर्स्ट जनरेशन फॉर producing the first generation we will use the same pattern। अब यहाँ पे हमें पेरेंट नंबर 1, पेरेंट नंबर 2, पेरेंट नंबर 1 हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, राउंड एंड येलो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R एंड Y, डबल टाइम्स हम इसे लिखेंगे। पेरेंट नंबर 2 में यू कैन सी हेयर रिंकल्ड एंड ग्रीन, स्मॉल r और स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसे भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे। यू नो वेल कि इन केस ऑफ एफ जनरेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस ओबे किया जाता है, जिसमें हम किस टाइप की एलील चूज़ करते हैं, बोथ पेरेंट्स में प्योर हाइब्रिड चूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि homozygous alleles will be used as parent number 1 and homozygous alleles will be used as the parent number 2। यहाँ पे हमारे पास parent number 1 क्या था, round and yellow, we will use the same कैपिटल R कैपिटल Y, बोथ केसेस में हमने ये यूज़ किया। यहाँ पे स्मॉल r एंड स्मॉल y 2 टाइम्स चूज़ किया। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे होमोजाइगस एलील्स आर प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट्स। ये हमारे पास यूनिक पॉइंट है जिसे हमने F1 जनरेशन के लिए हमेशा याद रखना है। whenever we will have the result of the F1 generation then we should have, हमारे पास यही आना चाहिए, यही आता है। if the homozygous alleles will be used in both case of parents with if single traits are used then law of segregation will be applying, and if double traits, more than one traits are used, it means law of independent is going to be applied in both cases if diploid organism is and producing सेक्सुअली। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसे हमने जहन में रखना है। अब बेटा यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे पेरेंट नंबर 1 भी हमारे पास होमोजाइगस एलील्स है एंड पेरेंट नंबर 2 डबल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, डाई हाइब्रिड के साथ। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय चेंज जीन्स एंड 1 characteristic when inherited in their offspring it is not bounded to carry the same characteristics। सेम कम्बिनेशन के साथ वो बाउंड नहीं है कि दूसरा शेप या कलर एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं कि वो उसी के साथ रहे। प्रूव हमने ये करना है। F1 जनरेशन हमारे पास आ गई लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली अगर हम देखें तो फिनोटिपिकली दे ऑल शुड बी राउंडेड इन देयर फॉर्म एंड येलो इन देयर कलर। राउंड होना चाहिए फॉर्म में और येलो होना चाहिए कलर में, बट दिस इज़ नॉट होमोजाइगस एलीज, दिस विल बी हेट्रोजाइगस एलीज बिकॉज हेयर डोमिनेंट एंड रिसीसिव केसेस कैन बी जज्ड। यहाँ पे डोमिनेंट और रिसीसिव केसेस आपको नज़र आ रहे हैं। राउंड कलर इज़ डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड एंड येलो कलर इज़ डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। फिनोटिपिकली ऑल राउंड एंड येलो ये, लेकिन जीनोटिपिकली ये हमारे पास रिसीसिव केसेस भी हैं। देन दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस तरह लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमने प्रूव कर लिया। अब हम अपने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा देखते हैं। सेकंड हमारे पास F2 जनरेशन आएगी। F2 जनरेशन के लिए अब हमारे पास डोमिनेंट और रिसीसिव के साथ राउंड, रिंकल्ड, ग्रीन एंड येलो ऑल कम्बिनेशन आर प्रेजेंट इन आवर प्रोजेनी। अब हम देखते हैं हमारे पास F2 जनरेशन के लिए व्हेन वी यूज़ द पेरेंट नंबर 1, पेरेंट नंबर 2 एंड हैव टेकन फ्रॉम द F1 जनरेशन के मेंबर से। अब यहाँ पे हमारे पास होमोजाइगस एलील्स नहीं है, प्योर हाइब्रिड नहीं है पेरेंट 1 और 2 में, बल्कि ये हमारे पास क्या आ गए हैं, डाई हाइब्रिड आ गए हैं। प्योर हाइब्रिड नहीं है, होमोजाइगस एलील्स नहीं है, बल्कि हेट्रोजाइगस एलील्स आर प्रेजेंट इन दिस कम्बिनेशन। ऑल्दो लुक round and yellow but recessive and green combinations are also existing in Earth which will be a pair
इन द नेक्स्ट जनरेशन, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी ओबे करेगा। साइड बाय साइड हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी चेक करेंगे कि सेम कम्बिनेशन एक दूसरे के साथ बाउंड रहती है कितने %, सेम कम्बिनेशन कैसे एक दूसरे के साथ क्रॉस कर लेती है। इट मीन्स एलील्स हैव ओपन चांस टू मेक देयर चेंज कम्बिनेशन। अपने एलील्स को, वो पार्टनर्स को, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो किसी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ चेंज कर सकते, क्रॉस कर सकते हैं। अब हमारे पास पेरेंट नंबर 1 आ गया। यहाँ पे प्योर होमोजाइगस हमने ले लिया, RY राउंड एंड येलो। यहाँ पे राउंड के साथ हमने ग्रीन का कम्बिनेशन किया। इसी तरीके से रिंकल के साथ पहले येलो को रखा और फिर रिंकल के साथ हमने ग्रीन को रखा। सेम हेट्रोजाइगस एलील्स विल बी यूज्ड हेयर पेरेंट नंबर 1 में और पेरेंट नंबर 2 में भी हमने सेम कम्बिनेशन रखी। व्हेन वी क्रॉस्ड दिस, जब हमने इनका क्रॉस किया, फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट मेंबर के साथ, फिर फर्स्ट मेंबर को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट मेंबर को थर्ड के साथ एंड फर्स्ट मेंबर को फोर्थ के साथ, ये हमारे पास फर्स्ट कॉल रॉ आ गई। सेकंड कम्बिनेशन के साथ, सेकंड कम्बिनेशन को भी सेम इसी तरीके से फर्स्ट ब्लॉक में लिखने के लिए हमने फर्स्ट के साथ किया, कंबाइन क्रॉस किया, फिर सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ और सेकंड को फोर्थ के साथ। सेम हेयर, थर्ड को फर्स्ट के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ। सेम हेयर, फोर्थ को फर्स्ट के साथ, फोर्थ को सेकंड के साथ, फोर्थ को थर्ड के साथ एंड देन इन द लास्ट फोर्थ को फोर्थ के साथ हमने कंबाइन किया, क्रॉस किया। देन सच टाइप ऑफ कम्बिनेशन अवेल्ड। इसमें सबसे पहले हमने हेट्रोजाइगस होमोजाइगस को नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना कि फिनोटिपिकली हम जज करेंगे कि विच टाइप ऑफ कम्बिनेशन विल बी अवेल्ड, किस तरह की कम्बिनेशन ये अवेल्ड हो रही है। यू कैन लुक हेयर, जहाँ पे जब हमने प्योर को प्योर के साथ, राउंड को येलो के साथ, राउंड येलो को राउंड येलो के साथ क्रॉस किया, देन वी हैव, यहाँ पे हमें राउंड येलो अपेयर हुआ। सेकेंड में ऑल दो ग्रीन कैरेक्टरिस्टिक इज़ ऑल्सो, राउंड के साथ हमारे पास ग्रीन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है। when we crossed both of these, then हमारे पास राउंड कलर, राउंडनेस डोमिनेंट है, लेकिन कलरेशन के हिसाब से हमारे पास येलो कलर है, लेकिन ये प्योर नहीं है। इसमें रिसेसिव इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिसेसिव कंडीशन। यहाँ पे भी इसी तरीके से कम्बिनेशन, लेकिन आउटलुक में फिनोटिपिकली दे आर येलो इन इट्स अपीयरेंस, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट केसेस मौजूद हैं। सेम कम्बिनेशन सेकंड कॉलम में आप चेक करें, रॉ में चेक करें कि यहाँ पे डोमिनेंट केसेस भी हैं, रिसेसिव केसेस भी हैं, लेकिन डोमिनेंट शेप और कलर दोनों प्रेजेंट है जीन्स, दैट इज़ द रीज़न इट लुक्स येलो। इसी तरीके से यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे भी, यहाँ पे राउंडनेस के लिए ऑल दो डोमिनेंट केसेस आर प्रेजेंट, राउंडनेस के लिए, लेकिन कलरेशन के लिए यहाँ पे रिसेसिव है और डोमिनेंट येलो इज़ एब्सेंट, दैट इज़ द रीज़न इट गिव्स द येलो ग्रीन कलर। इसी तरीके से यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास जो कम्बिनेशन आती है, वो कम्बिनेशन क्या आती है, यहाँ पे हमें राउंड एंड येलो वी विल गेट 9 नंबर्स में मिलेंगे। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास आ जाता है राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन अगर आप काउंट करें तो आपको 3 मिलेंगे। इसी तरीके से थर्ड वन हमारे पास रिंकल्ड एंड येलो आ जाता है। शेप हमारे पास रिसेसिव है, लेकिन कलर हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है। सो इट ऑल्सो गिव्स 3 कम्बिनेशंस। और यहाँ पे लास्ट वन हमारे पास प्योर हाइब्रिड के तौर पे आएगा या होमोजाइगस के तौर पे आएगा, वो है रिंकल्ड एंड ग्रीन, जो सिर्फ 1 कम्बिनेशन, यू कैन काउंट केयरफुली और आपको ये कम्बिनेशन मिलेगी 9:3:3:1। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या है, ये आपने देख लिया, स्टेटमेंट को आपने देख लिया। व्हाट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स, क्या कहा था कि when genes from one trait are not are inherited, they are not bounded, या they are not inherited together with another trait। जब एक कैरेक्टरिस्टिक पास होती है from one generation to another generation and more than one traits are included in the experiment, then one genes is not bounded to remain with the same combination at birth before the experiment. After the experiment, genes have open choice, alleles have open choice to make their partner changed. So it means this law proves, ये लॉ जो होता है ये हम साबित कर लेते हैं। अब कंक्लूजन हमारे पास क्या आता है, विच टाइप ऑफ
conclusion we got from this experiment. Number one, the inheritance of one trait, for example, shape, does not affect the inheritance of the other traits. For example, we have taken color. दो ट्रेड्स हमारे पास थे, डाई हर्बर्ट था, डाई हर्बर्ट का रीज़न मैंने आपको बता दिया. सेकेंड कंक्लूजन we got alleles assort independently during gamete formation. When they are going to form the gametes by using the two partners, then obviously alleles assort independently and combine according to their choice. They have the open choice to make their own combination from one characteristics with the other or with the other characteristic. दो characteristics हैं तो उनके पास alleles के पास open choice है कि वो किसी के साथ भी कंबाइन हो कि अपने कम्बिनेशन बनाए. दे आर नॉट बाउंडेड टू रिमेन सेम एट वर बिफोर द एक्सपेरिमेंट. जैसे एक्सपेरिमेंट से पहले वो थे प्योर हाइब्रिड थे, डबल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, डाई हाइब्रिड के साथ, यहाँ पे राउंडनेस एंड येलो एंड यहाँ पे ग्रीन एंड रिंकल. बट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हमें यहाँ नज़र आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी नज़र आता है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे नज़र आता है? डोमिनेंट और रिसीसिव केसेस हमने देख लिए F1 जनरेशन में. और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे नज़र आता है? जीन्स जो थी वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई लेकिन फिर रीअपेयर हो गई इन द नेक्स्ट जनरेशन में. और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे नज़र आता है कि डबल कैरेक्टरिस्टिक्स वो रिमेन भी रहे एक दूसरे के साथ, डोमिनेंट कंडीशन में भी रहे, रिसीसिव कंडीशन में भी रहे और साइड बाय साइड उन्होंने डबल कैरेक्टरिस्टिक्स की सूरत में अपने पार्टनर्स को चेंज भी किया. सो इट मीन्स दे आर नॉट बाउंडेड टू रिमेन विद द सेम कम्बिनेशन एज वर बिफोर द experiment. So from both of these conclusion, different combination appears in offspring proves the law of independent assortment. Thank you so much.